100
tinggi.
क्या बोलूँ मैं?
Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. So let us wait. I think some more people are coming. Can someone summarize this one? Source of data in just 2 minutes. Any volunteer? Hello. Hello. Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Just you summarize in your own word. I will help you. I want to know whether you can understand or not. So I will add. Sir, you talked about different websites of government websites for No. Just wait. My question is, in your own word, just summarize what are the sources of data. What is the data and what is the sources of data? Okay. बोलिए. Sir, you told about the 5 sources of the data. हाँ. First, internal record keeping, and external census. Give the example. This external बोल रहे हैं, so give some example. And then The go ahead. external, like you told about the libraries, you told about the websites, PubMed, and published journals. These are the external, and also you told about the census through various ministries website which is available that you have told us also, and also about the survey. And then Experiment. So these are the 5, and then I showed some website where you can get the health indicators such as MMR, life expectancy, Ministries all of those Health, things. NFHS. Okay, and survey means I just show you the power, that is a standard government website. Even there are many. Survey means even if you are doing survey through Google survey, like summer training में आप अगर हॉस्पिटल या हेल्थ में आप अगर सर्वे कर रहे हैं या किसी से क्लाइंट सेटिस्फेक्शन या कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे सर्वे के कैटेगरी में आता है. So right, if I ask you write the data and sources, so likewise as you said, you have to describe in one paragraph each. Okay. ठीक है. And second thing, 3 or 4 website I will send the link maybe after class. ठीक है. So you just try to review and all those things. Now next is I think yesterday I showed them one video. So Yes, sir. In video there are three scales there: nominal, ordinal, interval, and scale. So I will send you the video to you. So please just you review, and if you have any doubt, please ask me Monday.
Okay, but here in a summary part, nominal means suppose there is some code. You can code the data, no? Like for example, gender. If you ask in questionnaire, what is your gender? What is your sex? So how many code? Male, female. Okay. Are you right? You asking BMI? So less than 23, more than 23. Or marital status? We're married, bachelor. So you can code 1, 2, 3, 4. So if code is there, so this is called the nominal. ठीक है. And ordinal means suppose if you are some category rank kind of thing, low, medium, high. Like for example, I said wealth index. So rich, very rich, poor, very poor, and normal. Okay. So if you are asking some perception, agree, disagree, somewhat agree, not very much agree. So this is called ordinal. And third one is a interval scale, ratio something. So just to try to read the, like for example, continuous and discrete variable. So that this all will come like age. सो आप इसको देख लीजिएगा. ये स्पेसेस की जब हम आपको इनपुट पढ़ाएंगे तो उसमें इसको रिपीट भी करेंगे. सो आई एम लीविंग दिस पार्ट. सो अभी हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पे. तो नेक्स्ट है रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इंडेक्स एंड इंडिकेटर. सो मे आई आस्क यू व्हाट इज ए परसेंटेज? एनीवन? What is a percentage? Percentage calculate कैसे करते हैं? How you can calculate the percentage? Divided by 100. So there is a numerator and there is a denominator and multiply by 100. See, this is a percentage. Sir. Percentage calculated by divided by number by 100, as you said. So what is the difference between proportion and percentage? What is the difference? Anyone? One is a percentage and another is a proportion. In percentage, we multiply by 100. In proportion, we don't. Right. So I think more or less, I think same. Once you multiply by 100, so this is a percentage. ठीक है. तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि I may ask in objective type question में कुछ पूछ सकते हैं कि some symbol दे देंगे, बोलेंगे whether this is a percentage or this is a proportion. So please take care. And what is a rate and what is a ratio? What is a rate? हम लोग rate बोलते हैं ना. And what is a ratio? Can you describe me a ratio? जैसे हम लोग बोलते हैं ना sex ratio, dependency ratio, doctor. Sir, ratio, we compare the similar units, and in rate, we compare different units. And first you tell me the ratio. Ratio Sir, is The ratio is basically a relationship between any two numbers, wherein you divide, giving the ratio 1:2, 2:3. Yes, right. In ratio, the units are different of numerator and denominator. As in rate, the denominator is 1. No think because एग्जाम में हम देंगे आपको ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं रहेगा ये. As I said, चैप्टर 1, 2 में 20 मार्क्स होंगे. आउट ऑफ 70 20 मार्क्स आपके चैप्टर 1, 2 से रहेंगे. तो आप देख लेना. रेशियो आर वन नंबर एक्सप्रेस इन रिलेशन टू अनदर by divided by one number.
ठीक है, आप जैसे किसी ने स्टार्टिंग में कहा कि सेम 1:2 रेशियो, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे मेल डिवाइडेड बाय फीमेल, सेक्स रेशियो होते हैं ना सर तो वो इसी तरह का होते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो। सो जो एक्टिव पॉपुलेशन है 50/64 और 60 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस वन, प्लीज इसको आपके जो चैप्टर 1 है मॉड्यूल में एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट, आई डोंट थिंक, आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप फिर से आप हमको इंटरप्ट करके पूछ लीजिएगा। रेट इज जो बेसिकली द स्पेशल फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। अब रेट में आप क्या करते हैं, जैसे सपोज क्रूड बर्थ रेट है, तो क्रूड बर्थ रेट में क्या करते हैं, कैन यू डिफाइन क्रूड बर्थ रेट? ट्रू बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट, have you heard this name? yes sir, yes. Yes, sir. So total Crude number birth of rate. children divided by the mid-year population. Divided by हाँ, mid-year so population in thousands. हाँ तो बहुत सारे रेट आएंगे, तो ये आपके बेसिकली बिल्कुल अगर सुबह हो भी रिपीट अगेन सर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? छवि कौन? हेलो, Yes, sir. वाई वी कॉल ए क्रूड? क्रूड बर्थ रेट क्यों बोलते हैं? सोचिएगा, मंडे मॉर्निंग बताइएगा, आई एम गिविंग टाइम, ठीक है। आप बर्थ रेट भी बोल सकते हैं, क्रूड बर्थ रेट भी, बोथ आर सेम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड क्रूड बर्थ रेट। माय क्वेश्चन इज व्हाई वी कॉल ए क्रूड बर्थ रेट? क्रूड वर्ड क्यों यूज करते हैं? थिंक एंड वी विल डिस्कस मंडे मॉर्निंग। Maybe because it's not gender specific or anything specific. That's why. सर एज स्पेसिफिक नहीं होता, मे बी इसलिए है एज जेंडर और एज को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं उसमें। एग्री, दिस इज वन पॉइंट, जेंडर को कंसीडर नहीं करते, एग्री। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? तो थ्रू-आउट द पॉपुलेशन स्टडी कर सकते हैं। नहीं, आपने जो जेंडर बोला, एग्री, दिस इज एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। You think a similar line. Population include male and female both, so you can exclude the male population because only female can give birth. तो ठीक है, जेंडर आप उसको निकाल दीजिए। If you exclude the male population, so And the live births from dead person. no, लाइव बर्थ नहीं है। फिर चाइल्ड पॉपुलेशन निकालिए, ओल्ड पॉपुलेशन निकालिए। व्हाट इज ए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इंडिया में, जो हम लोग बोलते हैं 15 to 49 बोलते हैं। 15 to 40. But population include child population, old population, male population, so इसलिए इसको क्रूड बोलते हैं। आप इसको अगर इसको निकालेंगे ना, रिफाइन करेंगे, तो उसको फिर ये इट विल बिकम जनरल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। बट यहाँ के लिए जस्ट क्रूड के लिए है, बिकॉज वाई वी कॉल ए क्रूड बर्थ रेट, बिकॉज इसमें मेल फीमेल इंक्लूड है, चाइल्ड पॉपुलेशन इंक्लूड है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, दैट्स वाई वी कॉल ए क्रूड। एक क्रूड है क्या है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं, कुछ भी नहीं है, आप निकाल सकते हो। गांव में बैठे हो, प्रधान या किसी ओल्ड पॉपुलेशन से पूछो कि भाई आप इसमें इस गांव में कितने बच्चों के जन्म होता है ऑन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली। अगर उसने कह दिया कि सर 500 बच्चों का जन्म होता है साल में, या 800 का होता है, पॉपुलेशन कितना है, 2000 है, बट डिवाइड कर दीजिए, आपको एक अप्रोक्सीमेशन मिल जाता है। आप दूसरे गांव में जाइए, एक गांव में गए आपको 30 मिला, दूसरे गांव में गए तो आपको 29 मिला। तो इसका मतलब है आप जब रैंकिंग करेंगे, ऑर्डरिंग करेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि विलेज ए इज हायर देन विलेज 2। तो आप कहीं कुछ भी नहीं, बस मैनुअली भी कर सकते हैं, आपको कोई भी कंप्यूटर जरूरत नहीं है, कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं। कोई अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है।
now I'm coming to the index. What is the index? इंडेक्स में क्या होता है? रिलेटिव Table of contents. नहीं वो नहीं, उस टर्म में नहीं बोल रहे हैं। इंडेक्स का मतलब है, आप देखे होंगे कंज्यूमर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेल्थ इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स। बट बीएमआई भी आपके जो इंडेक्स इस तरह के बोलते हैं ना। तो इंडेक्स में सिर्फ याद रखिए कि आपको एक को 100 मान के उसके रिलेटिव करते हैं। सपोज आपके 2001 में अगर 100 पॉपुलेशन है और 2011 में अगर 150 है, अगर इसको इंडेक्स कैलकुलेट करना हो तो पहले को आप 100 मान के आप उसको कैलकुलेट करेंगे। आप मेरा मॉड्यूल में देखिएगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो आपको निकल जाएगा। So these are the मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट these are the some टर्मिनोलॉजी है जो कि स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं। रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। इसलिए तो इसको आप एक बार पढ़ दीजिए। आई वांट टू गिव मोर टाइम ऑन इंडिकेटर। अब नाउ लास्ट इज व्हाट इज ए इंडिकेटर? व्हाट इज ए इंडिकेटर? आई एम गोइंग टू शो यू वन। सर वो जो बाइक के आसपास लगा होता है ना वो इंडिकेटर, वो किधर जा रहा है उधर जा रहा है, वही वाला? नहीं, आज ऐसे एक ही चीज के बहुत सारे नाम होते हैं। अच्छा, वेरिएबल को भी इंडिकेटर बोलते हैं, जैसे लाइक आईएमआर इज इंडिकेटर बोलते हैं। Use for comparison. अब किसी के पास मॉड्यूल है क्या? Sir, देखिए। it's a Sir, smart. it's a sign to represent something, sir, which represents something. No. सर Sir, इंडिकेटर our का मतलब indicator is smart. We use the term SMART. It should be specific, measurable, No, that is already. attainable. Smart is okay. What is an indicator? सर Variable इंडिकेटर is a variable to define a situation. Let me say, yesterday we talked about now what is a variable. तो उसमें देखा होगा कि variable have different value. हाँ ठीक है। और मैंने वहाँ मेंशन किया था कि वेरिएबल एंड इंडिकेटर बोथ आर सेम। जब स्टैटिस्टिक्स में हम बात करते हैं तो वेरिएबल बोलते हैं, जब प्रोग्राम टर्म में बोलते हैं तो हम जो है उसको इंडिकेटर बोलते हैं। अब जो प्रोग्राम टर्म में जो इंडिकेटर है वो मैं आपको आपके मॉड्यूल में देखिए लिखा हुआ, मैंने लिखा है, इंडिकेटर आर जनरली डिफाइंड एज ए वेरिएबल दैट हेल्प टू मेजर चेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दिस इज गिवन definition by the WHA 1981. For example, low birth rate is an indicator. ठीक है, IMR is an indicator, institutional delivery is an indicator, female literacy is an indicator. So all are indicator and all are variable. ठीक है, तो मैं एक तरह पीपीटी आपको दिखा रहा हूँ कि इंडिकेटर, जैसे मैंने कहा था कि सपोज इफ देयर इज ए raw data is there, if you convert raw data is no meaning. So far to उसको बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द रेट, रेशियो, परसेंटेज। तो ये सारे जो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं एक पीपीटी दिखाना चाह रहा हूँ 10 मिनट के लिए। जस्ट वेट मिनट, गिव मी वन सेकेंड, आई एम ओपनिंग द शेयरिंग द डॉक्यूमेंट। Can you see the PPT? Hello? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
So why do we need indicator? We need indicator to compare the raw data of service delivery of one facility with other facility over time. अगर इसको कंपेयर करना है तो आप उसको इंडिकेटर में कन्वर्ट करिए एंड देन यू कैन कंपेयर. जैसा कि किसी ने कहा था, मैं थोड़ा सा इसको स्किप करूंगा एक दो, कि व्हाट इज दिस? दिस इज लुक्स लाइक परसेंटेज. परसेंटेज का डेफिनेशन क्या है? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इनटू 100. सो इंडिकेटर में हमेशा आपको न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ये आपको 100 होंगे. ठीक है. 100 का मतलब है यहाँ पे है कि 1000 भी हो सकते हैं, IMR, MMR सब इंडिकेटर ही है. थोड़ा सा ये चल रहा है. अब आपको कैलकुलेशन पे आते हैं. ठीक है. कैन एनीवन रीड? Any volunteer? Yes, sir. Just read. What is a PSCX? Rate calculation per population. नहीं, इसको थोड़ा पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है? PHCX 285 newborns were weighed after birth during last month. Of these weight, 26 were found to have weight less than 2.5 kg. What percentage of newborns had low birth weight? Percentage calculation per 100. Newborns weighing less than 2.5 kg divided by newborns weight into 100, which 26 divided by 285 into 100 is equal to 9.1%. The low birth weight rate is 9.1%. So understand, in a PSC there are 285 newborn were weighted, and out of which 26 are found low weight. So simple, 26 divided by 285, this become 9%. So 9% is a low birth rate. So that is a this is called, अब ये परसेंटेज है. आप देखिए, इसको परसेंटेज भी बोल रहा है, रेट भी बोल रहा है. आप परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, और रेट भी बोल रहे हैं. तो ये क्या हो गया? सो दैट इज ए इंडिकेटर है. इंडिकेटर को अब दूसरे पे चलते हैं. 2-3 इंडिकेटर करके इसको क्लोज करेंगे. Some read this one. Yes, sir. District X has a population of 3750 children under 5 years. In last month, 56 children under 5 years come to the clinic with diarrhea per 1000 population calculation. So the incidence rate of diarrhea in District X is 14.9 per 1000 population under 5 years. This is simple. In a clinic, there are 56 children have visited for diarrhea purpose. And what is the total children? Total children is 4,000. And just you divide, it will become 15%. So यहाँ देखिए परसेंटेज में 100 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1000 है. ठीक है. अभी क्या है कि जैसे किसी ने कहा था कि सुबह बात हो रही थी कि सर क्यों हम 100 से करते हैं, कोई क्यों 1000 से करते हैं. देखिए, मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो आप इसको 100 से कर सकते हैं. अगर आप इसको 100 से करेंगे तो क्या होगा? 1.49 हो जाएगा. करेक्ट? यस. 1.49 का मतलब है, लेट अस राउंड अप, 1.5 हो गया. सो यू कैन यूज 1.5. उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया? आउट ऑफ 100 1.5 incidence rate, okay. Lekin what happened? Sometimes if suppose this number is very small, suppose another district you find only 6.5. So अगर उसको 100 से करेंगे तो वो 0.6 हो जाएगा. And very difficult to interpret the decimal point. So इसलिए जब भी क्या है कि एक प्रैक्टिस है कि अगर आप इंसिडेंस रेट निकाल रहे हैं डिजीज का तो आप 1000 से निकालेंगे. ठीक है.
अगर आपका कॉमन डिजीज है तो आप 100 से कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ रेयर डिजीज है, डायरिया क्या हर महीने नहीं आता ना, क्योंकि हम आप जनवरी में भी निकालेंगे, फरवरी में निकालेंगे और मार्च दिसंबर तक निकालते हैं। तो अगर सीजनल होता है तो डायरिया का रेट ऊपर होता है, तो हम हमेशा डायरिया को जब हम NHM या हेल्थ डिपार्टमेंट में जब कैलकुलेट करते हैं तो 1000 से इसको हम करते हैं। सो अगर यहाँ देखिए इंडिकेटर क्या है, इंसिडेंस रेट ऑफ डायरिया इज इंडिकेटर। हाउ यू विल कैलकुलेट, देखिए डायरिया पेशेंट कितने हैं, टोटल पेशेंट कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन के मल्टीप्लाई करिए एंड देन यू विल गेट द अनदर इंडिकेटर। नेक्स्ट वन, TB। Yes, sir. In rate calculations per 1 lakh population in CHCA with a population of 15,000, some 98 people were diagnosed with tuberculosis in 2000. 98 divided by 15,000 into 1 lakh is equal to 9 crore 8 lakhs divided by 5,000 is equal to 653 per 1 crore population. The incidence rate of tuberculosis in CHCA is 653 per 1 crore population. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में देखिए आपको 1 लाख पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप 100 से अगर इसको करें या 1000 से भी करें कोई इशू नहीं है, बट क्या नंबर विल बी बिकम वेरी स्मॉल। देखिए 1 लाख से किया गया है तो 653 पर लाख आ रहा है। आप इसको अगर 100 करना है तो इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक पैटर्न है, एक प्रचलन है, मैं तो कहूंगा कि एक प्रैक्टिस है, इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस में दिस इज इंसिडेंस एज अनदर इंडिकेटर। नेक्स्ट, इस डायरिया को छोड़ते हैं, अब रेशियो पे आते हैं। कैन यू रीड दिस वन? Yes, sir. So calculations of a ratio in District X, 4 doctors serve a population of 15,000. So how many people per doctor? So we calculated this by 15,000 divided by 4, which comes out to be 3,750 people per doctor. Second is 50 nurses serve this population. So how many people per nurse? So in this we divide 15,000 divided by 50, which comes out to be 300 people per nurse. It's okay, it's okay, it's okay. Maybe it's just this is also indicator. Now this is not part of statistics, but just for your understanding, for program perspective, indicator could be in input, it could be process, it could be output, it could be outcome, and it could be impact. ठीक है, what is the difference between input, process, output, outcome, and impact? Anyone? So input are the direct resources going in the process. Process is the process how the resources are being used, and then output is the direct result which we get. Outcome is the eventual changes that are occurring due to the whole process. Like it can be compared to the impact which is occurring. Can you give example? You are, I think, partially okay. Any example comes to your mind? No, sir. See, there is so many indicators. Suppose I can give example which comes in my mind. Suppose there is a training of a health worker, okay, or any training, a training of personal care, any type counseling training, clinical training, or any type का training. So training में क्या होता है, हम we invite people and train them. उसमें master trainer, training venue, ठीक है, और रिसोर्स होते हैं। तो सपोज ट्रेनिंग करने के लिए आपको ट्रेनिंग वेन्यू होने चाहिए, मास्टर ट्रेनर होने चाहिए, वो सब चीजें होते, आपके ट्रेनिंग प्लान होने चाहिए, ये सब होते हैं। सो इनपुट का मतलब होता है कि बेसिकली जो रिसोर्स हैं, जो आपके HR हैं, जो HR रिसोर्स हैं,
जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेन्यू है, प्लान है, सो दीज आर द इनपुट है। प्रोसेस क्या है? ट्रेनिंग कंडक्टेड। ट्रेनिंग से पहले आपके पास जो भी मतलब रिसोर्सेज हैं, HR हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपके पास है। ट्रेनिंग कंडक्टेड, दैट इज ए प्रोसेस। अब क्या है, ट्रेनिंग तो हो जाती है, लेकिन यूजुअली आप देखिए ट्रेनिंग के बाद वो जो ट्रेनिंग होते हैं, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो वो लर्निंग होते हैं, वेदर दे विल अप्लाई और नॉट। सपोज फॉर एग्जांपल क्लिनिकल ट्रेनिंग या काउंसलिंग ट्रेनिंग डॉक्टर की हो रही है, उनको हमने ट्रेनिंग दे दिया, लेकिन वो वापस जाके वो उसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। इफ दे आर यूजिंग द ट्रेनिंग स्किल, तो वो अगर मान लीजिए सपोज दे आर, इफ यू आर यूजिंग, सो दैट इज व्हाट इज दे प्रोवाइड द सर्विसेज टू क्लाइंट, सो दैट इज आउटपुट। ठीक है, अब उन्होंने सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो क्या आउटकम हो रहा है? आउटकम ये हो सकता है कि डिजीज कम होगा, ज्यादा होगा, और फाइनली उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट क्या होगा? डेंगू, जैसे आपकी स्लाइड में आप देखिए, आउटकम इंडिकेटर में लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है इट विल इंक्रीज, एंड उससे व्हाट हैपेंड, बट इम्पैक्ट इंडिकेटर में लिखा है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी, IMR एंड टोटल फर्टिलिटी रेट विल बी इम्प्रूव। सो ये जो इम्पैक्ट इंडिकेटर है फाइनल इंडिकेटर है, एंड इट विल कम आफ्टर 5 year or 10 year. It will not you can't achieve the impact indicator within 2 months, 3 months or 1 year. So usually हम लोग, you can track output indicator, process and input very well, but outcome indicator and impact indicator it will take little time. Outcome indicator को हम short term impact indicator भी बोलते हैं. So outcome indicator is a short term impact indicator and finally is a long term indicator. ठीक है, तो अगर इस स्लाइड को अगर पढ़ते हैं, बिकॉज ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है, indicate resource invested in the system, for example number of doctor per lakh population. So जो भी resources हैं वो आपके इनपुट हो गए. What is the process? Indicate activities of health system, percentage of doctor trained in safe delivery skill. So यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए safe delivery skill में डॉक्टर को ट्रेनिंग दी गई, वो आपका प्रोसेस इंडिकेटर. व्हाट इज आउटकम इंडिकेटर? आउटकम इंडिकेटर, सो जो सेफ डिलीवरी स्किल है, सो फाइनली दे विल प्रोवाइड द सर्विसेज, सो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी परसेंटेज ऑफ वुमन हु रिसीव एंटीनेटल केयर. सो फाइनली अगर सपोज लेडी एंटीनेटल केयर है, सो इट विल इंक्रीज द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड देन इट विल इफेक्ट ऑन मैटरनल मॉर्टेलिटी. So there is a chain: input, process, output, outcome, and impact indicator. So these are the type of indicator. So in program language में हम बात करते हैं इसको. And these are the some. सर इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? मतलब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, सॉरी. हमें जरूरत क्यों पड़ी इसी क्लासिफिकेशन करने की? थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, जरूरत का मतलब क्या, मतलब आपने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर लिखा है सर, ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम, ये करना ही क्यों है? हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ और हो सकता है इसके अलावा, कुछ और नया जो नया का क्या मतलब है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बॉस? यस सर, जैसे हाँ बोलिए ना, बोलिए प्लीज. कह रहे हो मतलब ये पीछे, इसके अलावा सर कुछ और भी तो होगा ना जो पीछे चलता आ रहा है, या यही है? ये नहीं, इसके अलावा बहुत सारे हैं. ये हम आपको वन टाइप का बता रहे हैं. एक तो आपको बहुत सारे हैं लॉग, इसको हम लोग प्रोग्राम में बोलते हैं लॉग फ्रेमवर्क. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, जो कि एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. आप बैंक में 100 रुपया डालेंगे, 8% अगर इंटरेस्ट है तो 108 रुपया आउटपुट निकलेगा. होता है कि नहीं होता है? सो ये बिल्कुल इजी है. यहाँ पे ये जो टर्म है, जो मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा था कि जब आप इंडिकेटर क्रिएट करते हैं, उसमें रेट, रेशियो, इंडेक्स, प्रोपोर्शन, सब कुछ इंडिकेटर ही होता है. ठीक है, और दूसरी चीज मैंने कहा कि ये टाइप ऑफ इंडिकेटर होते हैं जो कि इनपुट इंडिकेटर होते हैं. अगर आप कर दीजिए ट्रेनिंग वेन्यू, नंबर ऑफ मास्टर ट्रेनर, सो दीज आर द इंडिकेटर, वो आपके इनपुट इंडिकेटर में माने जाते हैं. प्रोसेस क्या होता है? जो कोई एक्टिविटीज किए जाते हैं, जैसे ट्रेनिंग आपने किया. ठीक है,
आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस सर अब आ गया सर, आप सिस्टम कह रहे हो, ये सिस्टम में चलता है। मैं इसको ठीक है फिर से रिपीट करूंगा। एक तो होता है, आप देखिए मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन। आप अगर नंबर करोगे, मीन निकालिए, मीन तो आ गया 5.6, फिर उस लेके 5.6 का करेंगे क्या? तो इसलिए उसका इंटरप्रिटेशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इंडिकेटर का यूज बता रहा हूँ। सपोज आपने ट्रेनिंग किया 100 लोगों का, ठीक है, मैं यहाँ एज ए इवैल्यूएटर पहुंचा, आई विल आस्क यू ओके आउट ऑफ 100 हाउ मेनी पर्सनल या डॉक्टर और नर्स है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो पता चला क्या होता है, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब हेल्थ सिस्टम में क्या होता है, एक ही डॉक्टर बार बार ट्रेनिंग लेता है, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाएगा उसी को ट्रेनिंग दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट में जो चीफ मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं या चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर होते हैं, जब कोई लेटर आता है स्टेट लेवल से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्लीज सेंड द नेम ऑफ पर्सन फॉर ट्रेनिंग, तो जो उसके करीब होता है ना बॉस के, वो उसी की ट्रेनिंग बार बार करता है। वो क्या करता है, ट्रेनिंग के वो लेने के बाद फिर वापस आ जाता है, अच्छा ट्रेनिंग दिल्ली में है, मैं भी जाऊंगा, अच्छा ट्रेनिंग जो है लखनऊ में है, भोपाल में है, अहमदाबाद में, कैपिटल सिटी है, उसका घर है, रिमोट एरिया में, घूम के आएंगे। तो एक ही आदमी को बार बार ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जब आप उससे पूछेंगे कि भाई ट्रेनिंग के बाद किया क्या, कुछ नहीं किया, वो जो उसका जॉब ही नहीं था। आप समझ रहे, वो डिप्टी सीएमओ इम्यूनाइजेशन था, अब वो ट्रेनिंग ले रहा है लॉजिस्टिक, पता नहीं क्या क्या ट्रेनिंग ले रहा है। तो जब आप ट्रेनिंग देखेंगे तो पता चला 100 में से 50 लोग तो सर्विसेज ही नहीं देते हैं, अब 50 लोग फिर सर्विस देते हैं, फिर उन 50 लोगों में से किसी का ट्रांसफर हो जाता है, किसी का कुछ होता है। तो अल्टीमेटली आप पाएंगे कि उसका आउटकम क्या निकला, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो कुछ होता है नहीं है ट्रेनिंग से। अब कहीं कहीं देखेंगे कि ट्रेनिंग से होता है। आप समझ रहे हैं, जैसे यूपी और गुजरात का कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि गुजरात में लोग जिनको ट्रेनिंग में भेजा जाता है, आप जब वो उनसे पूछेंगे कि ट्रेनिंग के बाद कितने लोगों को सर्विस दे रहे हैं, जब आप इवेलुएट करेंगे, अगर मान लीजिए सर्वे करते हैं, तो पाएंगे कि लोग ट्रेनिंग के बाद 60% वो आके उसकी स्किल का यूज करते हैं। यूपी में बोलेंगे साहब कहाँ वो भेजना था, 5% करते हैं, बाकी 95% ऐसे ही रह जाता है। समझ गए? इसलिए ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट आउटकम एंड इम्पैक्ट इंडिकेटर बना है। जैसे मैंने शायद थोड़ा सा मैं जिक्र किया था दाई की ट्रेनिंग की गई थी, बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये देखा गया दाई की ट्रेनिंग तो हुई, बट जो है मैटरनल मॉर्टेलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। कैसे देखा गया? क्योंकि हम इम्पैक्ट जब देख रहे हैं तो इम्पैक्ट ही नहीं है, उस एक्टिविटीज का इम्पैक्ट ही नहीं है। ठीक है, सो ये इंडिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी सिस्टम की स्लाइड है, हरियाणा गवर्नमेंट की है। आई वाज ए मास्टर ट्रेनर, मेरे को एक WHO हरियाणा गवर्नमेंट का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, हाउ टू यूज द डाटा यूज। सो 1 person फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 1 person फ्रॉम द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। सो आई वाज इनवाइटेड। सो मैं यमुनानगर एंड करनाल में गया था, आई थिंक लॉन्ग बैक 4-5 years बैक, टू ट्रेन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल। तो ये NHM का स्लाइड है जो कि सिस्टम में यूज होता है। व्हाट आर द इंडिकेटर, व्हाट आर द, तो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। ओके, आर यू क्लियर सर? यस सर डेफिनेटली। हाँ ठीक है। आपको देखिए, आप अगर हेल्थ फील्ड में रहेंगे तो इंडिकेटर वर्ड तो रहेगा ही रहेगा, इससे आपको पीछा नहीं छूटेगा। ये इंडिकेटर जो टर्मिनोलॉजी है एवरीवेयर यू विल गेट। अब उसको आप IMR MMR बोलिए, नंबर ऑफ पेशेंट बोलिए, OPD पेशेंट बोलिए, IPD पेशेंट बोलिए, वो बोलने का तरीका होता है, लेकिन जब भी आप एनालिसिस करेंगे ये इंडिकेटर आएगा। तो ये छोटा सा एक स्लाइड था इसलिए मैं दिखाया, एंड दीज ऑल आर इंडिकेटर। इसका एक है, दीज आर द अलग है, इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल कवरेज, ये सिर्फ मदर एंड चाइल्ड का है। इसी तरह आपको एड्स में, TB में, न्यूट्रिशन में, इन एवरी फील्ड यू विल गेट द इंडिकेटर। अब एक दो और स्लाइड दिखा के इसको मैं क्लोज करूंगा।
अब आपको लेट अस से कैलकुलेट करना है एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन रेट। एक तो होता है एंटीनेटल केयर और एक होता है एंटीनेटल चेकअप, दोनों को एनसी ही बोलते हैं। यहाँ पे एंटीनेटल केयर की बात हो रही है, एंटीनेटल चेकअप की बात नहीं हो रही है। तो हमें पता है अगर एमसीएच प्रोग्राम में एंटीनेटल केयर में क्या क्या आते हैं रफली, एनीवन? हेलो, एंटीनेटल केयर में क्या क्या आते हैं? सर मालूम नहीं सर। Sir, may I? हाँ प्लीज प्लीज। Yes, sir. Sir, in this, the pregnant women are checked for their basic BP, vitals, BP, and basic blood sampling is done, hemoglobin levels and albumin levels to rule out eclampsia and pre-eclampsia stages, hypertension, and accordingly, if anybody diagnosed with that, so accordingly they are tracked and treated. And sir, iron supplementation, folic acid supplementation, calcium supplementation, these are done, and the pregnant women are accordingly guided for the benefits of having nutritional diet, maintaining hygiene, etc. during the antenatal period, perinatal and postnatal. राइटली, बट आप शायद बीडीएस है ना? No, sir, I'm a BMS. Ayurvedic. BMS are, so that's why you explain this one, but ये लेमैन में कोई समझ नहीं पाएगा। तो इन प्रोग्राम कैन आई? हाँ प्लीज। सर इसमें विजिट्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं ना? विजिट्स हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया। Yes, everything. But I would like to just mention here, in program language में हम 3-4 चीजें बोलते हैं। If someone get pregnant, so पहला पार्ट है उसका रजिस्ट्रेशन होना। रजिस्ट्रेशन मतलब होना फर्स्ट है, एंड दूसरा जो पार्ट है आफ्टर रजिस्ट्रेशन उसका चेकअप होता है। 3 चेकअप पहले होता था, अभी 4 चेकअप की बात करते हैं। उस लेडी का एब्डोमिनल चेकअप, मतलब कौन चेकअप करता है, डॉक्टर और नर्स। नाउ सिंपल वर्जन, आफ्टर चेकअप देयर इज ए IFA गोली, 100 IFA गोली, एंड देन TT इंजेक्शन। these are the proper वो है, टाइम टू टाइम गाइडलाइन चेंज होते रहते हैं। अब जब वो चेकअप करने के जाएगा तो जो मैडम इससे पहले बोल रहे थे कि न्यूट्रिशन और काउंसलिंग, वो सारे चीजें, वेट, ये इनबिल्ट है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो बीपी और वेट तो वो होगा ही होगा। तो पहला है कि रजिस्ट्रेशन होते ही लेडी का डॉक्टर से या नर्स से कांटेक्ट होना जरूरी है। तो जो हमारा एमसीएच प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चेकअप होता है, फिर IFA होता है, TT इंजेक्शन होता है, फिर उसके बाद डिलीवरी आ जाता है। हम बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, वो तो एज्यूम करते हैं कि जब वो कांटेक्ट में आएगा तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी डन। तो हम अगर ये इंडिकेटर है कि व्हाट इज एंटीनेटल एनसी रजिस्ट्रेशन रेट, तो कोई भी इंडिकेटर का देखिए दीज आर द कॉलम्स होते हैं। कैन एनीवन रीड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन रेट? या लिखा हुआ है, जस्ट रीड इट। Sir, it is the percentage of pregnant women who were registered in public health facilities for ANC. And in numerator, we take total ANC registered. In denominator, we take estimated pregnancies, and then we multiply it with the factor of 100. The suggested level of use may be the national, state, district, and block, and the periodicity of the indicator is annual and semi-annual. ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर। वन इज ए एस्टिमेटेड प्रेगनेंसी। आपने कहा ना किसी भी इंडिकेटर के लिए डिनोमिनेटर चाहिए। वेयर इज ए डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर तो है, लाइक सपोज देयर इज ए 100 प्रेग्नेंट लेडी रजिस्टर्ड। अब हमको रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकालेंगे? बिना डिनोमिनेटर के तो रेट निकलेगा नहीं। देयर इज ए नीचे का जो होता है, तो एलिजिबल कपल्स लेंगे एस्टिमेटेड प्रेगनेंसीज के लिए। हाँ, तो एस्टिमेटेड कैसे करेंगे?
सिंपल है। जैसे क्या करते हैं सिस्टम में, क्या करते हैं, जैसे पीएससी या बैठे रहते हैं गांव में, तो मान लीजिए ब्लॉक है या आपका पीएससी, उनको पता होता है कि उनके एरिया का पॉपुलेशन कितना है अप्रॉक्सीमेट, अब बर्थ रेट पता होता है कि यार अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे 20 होगा, 15 होगा, 25 होगा। लेट अस एज्यूम कि 20 है, मतलब क्या हुआ 2% है, क्रूड बर्थ रेट 20 है, तो 2% वो उसका कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 2% लोग एट ए टाइम जो है प्रेग्नेंट बर्थ होता होगा या प्रेगनेंसी होता है। ऑल्दो देयर इज ए प्रेगनेंसी लास्ट 10% होता है, एक रफ मान लेते हैं कि जो भी पॉपुलेशन है उसका 2% है, या केरला जैसा डेवलप वो मान लेते हैं कि 1% है। तो जो भी एजम्पशन होता है उसको मान के डिनोमिनेटर करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेशन है, उस पर्टिकुलर एरिया में ये रेट है, और ये कैलकुलेट करते हैं। अब आपका रेट निकल गया तो उसका यूज देखते हैं कि किसको यूज, उस इंडिकेटर को यूज कौन करेगा। ब्लॉक लिखा हुआ है, ब्लॉक लेवल पे यूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूज करेंगे, स्टेट लेवल पे करेंगे, नर्सरी, ये लिखा हुआ है, ये चारों सभी लोग यूज करेंगे, और इसको 6 मंथली या एनुअली इसको देखा जाएगा। सो ये सारी चीजें MIS में जाती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो MIS पोर्टल है, ये सारी चीजें इस पे जाती है। उसी तरह अर्ली रजिस्ट्रेशन में क्या है, जो फर्स्ट क्वार्टर में जो जिसकी रजिस्ट्रेशन होता है उसको ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं, 3 to 9 मंथ होते हैं, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो 12 वीक के अंदर होते हैं उसको अर्ली बोलते हैं। सो इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, मैं इसको अब ठीक है। अभी इसी तरह देखिए TT है, चेकअप है, IFA है, इसी तरह फुल इम्यूनाइजेशन है। सो दीज आर द इंडिकेटर। ये बहुत ही लंबा है, इसमें आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप देख लीजिएगा, आई विल शेयर यू। माय पर्पस इज एनी इंडिकेटर, व्हाट इज अ इंडिकेटर, इफ यू जस्ट न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 और लाख करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा, नंबर 1। Number 2, there is a type of indicator, input, process, output. Number 3, any indicator should have definition and how you will use. So these are the some PPTs there. So these are the very long 50 PPTs there. So don't read all 50. अब मैं इसको काटने नहीं जाऊंगा, but I will share with you. आप इसको maybe 3-4 PPT आप इसको देख लीजिएगा, like complicated delivery, लेबोरेटरी, ये सारे हैं, डिजीज स्पेसिफिक, ठीक है। ये वही है जैसे NFH में 131 इंडिकेटर है, ये सिस्टम का इंडिकेटर है कि अगर ये MCH प्रोग्राम है तो दीज आर द इंडिकेटर, और उसको कैलकुलेशन कैसे करना। अगर TB प्रोग्राम है, एड्स प्रोग्राम है, तो आप उसी तरह इंडिकेटर को डिफाइन करिए, उसकी कैलकुलेशन स्टेप लगाइए और करिए, ठीक है। Any question here? Any doubt? हेलो सर ऐसा क्यों लग रहा है ये बहुत ही मुश्किल सा सब्जेक्ट है? कैसे कह रहे हैं आप, तो दूसरे को डरा रहे हो भाई। क्या नाम है भैया आपका? सर ऋषभ। ऋषभ, आप दूसरे को क्यों डरा रहे हो? सर मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है? नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। हाँ जी सर, मेरा ही है। ये आपका इंटरप्रिटेशन ऋषभ इसलिए है कि आप 100 में से 1 हो, आप इन्फ्लुएंस कर लोगे सारे 100 लोगों को कि डिफिकल्ट है। अरे सर मैं कैसे कर सकता हूँ सर, ये काम हाँ, मेरा थोड़ी है सर। नहीं ऋषभ, ये है ना, आप ये सिंपल बताइए, परसेंटेज कैसे निकले, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, सिंपल सी चीज है, वही इंडिकेटर है। मैं आपको सब चीजें इसलिए बता रहा था कि देखो वेरिएबल भी बोलते हैं, इंडिकेटर भी बोलते हैं, आप उसको रेट भी बोलते हैं, रेशियो, और इसीलिए मैंने इसको रखा था। ये कंफ्यूजन है, रेट है, रेशियो, इसमें क्या डिफरेंस है। ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 इसको आप पढ़िए आप लोग, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, ये सिर्फ सिंपल से देखिए, मैंने इसको काट के सिर्फ 4-5 पेज का बनाया, बेसिकली 4 पेज ही है। 4 पेज को आप पढ़ने में आई थिंक 1 घंटे में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई करिए, मैं हूं, अगर कोई डाउट है आप पूछिए, ग्रुप में पूछिए, अलग से पूछिए, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने जानते कि आप इस यूनिट में
तीन या चीजें समय हैं। आगा पकड़ नीचे से देखिए पहला नीचे से ऋषभ, पकड़ अगर नीचे मैं नहीं आपसे पूछूं आपसे आंसर दे दोगे who is this? कि Please mute your what is mic a यार. statistics? Please unmute. What about other perception? ऋषभ का तो चलो एक का तो बता दिए सर कि पता थोड़ा नहीं सर, ऐसा ही नहीं है सर, क्योंकि जब फाइनेंस सर पढ़ा रहे थे ना पंकज सर, तो वो भी मेरे सर के हाँ ऊपर से काफी जा रहा था, तो बड़ी मुश्किल से समझ आया देख देख के। अब शायद लगता है नहीं इसमें भी नहीं संघर्ष करना पड़ेगा मेरे को। नहीं करना पड़ेगा भाई, नहीं करना पड़ेगा। इसलिए नहीं करना पड़ेगा, आप कोशिश तो करो। आप हमको ये बताइए सिंपल सी भाषा, व्हाट इज ए स्टैटिस्टिक्स? मैंने आपको कहा कि अगर आप एग्जाम में ये लिख दोगे कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, माइंड अप्लाई योर माइंड, हो गया स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज ए बायोस्टैटिस्टिक्स? व्हेन अप्लाई इन द हेल्थ इज ए बायोस्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज ए पॉपुलेशन? व्हाट इज ए सैंपल? सैंपल ड्रा करते हैं पॉपुलेशन से, इनवर्स से, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट इज ए वेरिएबल? वेरिएबल हैज डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज ए कंटिन्यूअस वेरिएबल, लाइक जिसमें एज और वेट होते हैं, डिसिमल होते हैं। व्हाट इज ए डिस्क्रीट, जिसमें नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ फिनिश, ठीक है। व्हाट इज ए रेट, व्हाट इज ए रेशियो, व्हाट इज ए, खत्म हो गई, पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया 10 मिनट में। ठीक है, आप इसको ट्राई करो। और आई डोंट थिंक, आप देखिए क्या होता है, किसी को 10 मिनट में समझ में आएगा, किसी को 1 घंटे में आएगा, लेकिन ये है जैसे मैंने कहा ना कि जो मैं आप लोगों को अपना एस्टिमेशन बता रहा हूँ, 20% जो है थोड़ा टफ है, अदरवाइज वो जो बाकी रिमेनिंग 80 ये स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं, ओनली बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। आप समझे, कोर्स देखिए, आप अपने जो लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, आप उनसे पूछिएगा, जो 4-5 कर्नल हैं जो बीटेक और इंजीनियर लोग, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल। अगर आपको न्यूमरेटर बिना डिनोमिनेटर आता है तो आता है। मैंने क्या बोला था कि जो सबसे डिफिकल्ट है इंटरप्रिटेशन है। अब वो इंटरप्रिटेशन में कैलकुलेशन तो है ही नहीं। इंटरप्रिटेशन में तो आपका माइंड है, आपका कंसंट्रेशन है, आप कैसे उसको कंसंट्रेट कर रहे हो, कैसे कैसे लिख रहे हो, राइट। आप ट्राई करो, हम साथ में आपकी हेल्प करेंगे। व्हाट अबाउट अदर रिंकी गुप्ता, आलिशा आनंद? Sir, I find it interesting. It's an interesting subject. हाँ, इंटरेस्टिंग है। Yes, sir. I'm finding it very much interesting. देखिए टफ तो है, लेकिन क्या है कि ये जो कोर्स डिजाइन किया है, इस कोर्स में उतना नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। अब इतना तो करना थोड़ा सा पड़ेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगा तो अच्छा रहेगा हाँ, ना। ठीक, इसीलिए मैं ऋषभ को बोला ना कि आप, क्या होता है अगर मैं बोलूँ कि आगे गड्ढा है, तो बाकी सब लोग सोचेंगे अरे भाई गड्ढा है, देखने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बंदे ने बोल दिया गड्ढा है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। आप जाके तो देखो गड्ढा है कि नहीं है, अब फिर आप अगर गड्ढा हो तब बताइए हाँ भाई गड्ढा है। अब किसी एक ने कह दिया गड्ढा है, सब लोगों ने, एक कहावत सुनते हैं, जब कौवा कान ले गया, तो आप कौवे को देखोगे, कान को देखोगे? अब ऋषभ ने कह दिया कि कौवा ने कान, क्या बोलते, कान को कौवे ने ले गया, अब सब लोग कौवे के पीछे भागोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। नहीं सर, मैं तो सर अपना बता सर, मेरे को तो थोड़ा बहुत लग रहा है डिफिकल्ट, कि मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी इसमें काफी। हाँ, ये एग्री कर रहा हूँ। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ इजी है, ऋषभ, ये मैं ऋषभ और बाकी लोग हैं, आपने एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम आपको बता रहा हूँ 20% लोग हैं जिनको टफ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 10th तक पढ़े हुए हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, उनको सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। देखिए मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कहता, उस टाइम कहता कि टफ है, उस टाइम मैनुअली होता था। आप अपने कुछ कर्नल साथियों से पूछिएगा, जब वो लोग जब पढ़ते थे मैनुअली करते थे, तब टफ था। अब है ही नहीं मैनुअल, एक्सेल है, आपको मीन मीडियन मोड निकालना है, सब एक्सेल से निकल जाएगा। कमांड आपको अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए, भूल जाइए, फिर देख लीजिए, तो टफ है ही नहीं कैलकुलेशन। लेकिन टफ जो है इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन में कहाँ नंबर है ही नहीं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो और दूसरी चीज है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स में 100 में से अगर 80% भी सीख गए और भूल गए, कोई बात नहीं, बाद में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, कोशिश करूंगा कि मैं मंडे तक काफी सारे सवाल लाऊं इन सब चीजों को। 2 दिन का है, पूछ लीजिए, देख लीजिए, और मंडे को हम इसको रिकैप जैसा कर लेंगे, कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको टेकअप कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे,
उसके बाद एक पॉइंट और है, मैं आज ब्रेक करूंगा, कंटिन्यूअस नहीं करूंगा, फिर अटेंडेंस लेके छोड़ दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर पूरा हो गया। नया चैप्टर शुरू करने के लिए और थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि स्टार्ट किए तो फिर वो क्लोज हो जाएगा। अभी कितना बज रहा है? आई नीड मे बी सेकंड चैप्टर पूरा हो गया आज? हाँ पूरा हो गया, फिनिश। क्या बात है सर, बड़ी स्पीड से पढ़ाया आपने। अरे 2 दिन में एक चैप्टर, 7 चैप्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा। 7 चैप्टर को 10 दिन में कंप्लीट करना है। अच्छा, ये टेंशन भी तो माइंड में आपके सर। हाँ वो भी है। नहीं, सेशन प्लान के हिसाब से चलेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे। मेरा कोशिश है कि थोड़ा टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा SPSS और R पे थोड़ा आप लोगों को फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये तो कुछ नहीं था, चैप्टर था ही नहीं, चाहे तो मैं इसको उड़ा सकता था। इस चैप्टर में था क्या भाई, आप अगर खुद सोचिए। इस चैप्टर में सिर्फ था कि व्हाट इज ए स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज ए पॉपुलेशन, व्हाट इज ए वेरिएबल, व्हाट इज ए सोर्स ऑफ डाटा एंड व्हाट इज इंडिकेटर। ये 4-5 चीजें थी। इसको पढ़ाने में तो 1 घंटे में भी आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने इसीलिए टाइम लिया ताकि आप यूज टू हो। अभी नंबर तो आया नहीं, कोई नंबर आया बताइए? 2 दिन निकल गया, कोई नंबर नहीं आया। अब नंबर तो मंडे से आएगा, जब मीन आएगा तो हम एवरेज निकालेंगे, तब वहां नंबर आएगा, तो देखते हैं, ठीक है। मेरा ये है कि इसमें बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। जो थोड़ा सा 1 घंटा, इसको 4 पेज का है, नावल की तरह एक बार पढ़ लीजिए। 4 पेज है, 4 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? आप लोगों सभी लोगों के पास है, अगर आप फ्री थोड़ा सा टाइम निकाल के 4 पेज, ये हाफ एन आवर का काम है। हाफ एन आवर में इसको रीड कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए और छोड़ दीजिए। बाद में एग्जाम के टाइम पे मेहनत कर इसको रिवाइज करके एग्जाम दीजिएगा, खत्म हो गया, ठीक है। सर SPSS का यूज हम मंडे को करेंगे? मंडे को एक्सेल इंट्रोड्यूस करेंगे और टाइम बचेगा तो आफ्टरनून में SPSS इंट्रोड्यूस कर देंगे। देखते हैं टाइम पे क्या है। हम आपको SPSS डाउनलोड कर लिए कुछ लोग? ये सर, बट सर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम हो रही है डाउनलोड करने में। नहीं, मैक में आ रहा है, उसमें आ रहा है? सर नॉर्मल में भी नहीं, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? आपने मुकेश जी से बात किया? नहीं सर, अभी करना पड़ेगा। नहीं तो आप बात कर लो, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था। सो व्हाट ही सेड कि आई थिंक मेनी स्टूडेंट हैव कांटेक्टेड हिम एंड ही गाइडेड हिम। सो आप उनसे बात कर लो कि ये प्रॉब्लम, व्हाट्सएप पे लिख के उनको भेज दीजिए, सैटरडे संडे में भेज दीजिए, वो काम करते रहते हैं सैटरडे संडे में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर डाउनलोड हो गया होगा तो मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मंडे हम मैक में नहीं चल रहा, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। मैक में नहीं चल रहा है, मैक में कुछ प्रॉब्लम, मैक में जो वर्जन का प्रॉब्लम है वो बता रहे थे कि मैक में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको उस वर्जन का मिल जाए, फिर देखते हैं। आप उनसे थोड़ा कांटेक्ट में रहिए, ठीक है, उनको रिक्वेस्ट करिए, मिल जाएगा। लेकिन मैक तो ज्यादा लोगों का नहीं होना चाहिए, 8-10 लोगों का होना चाहिए। नहीं सर, मेरे पास मैक है। हाँ नहीं, वो सारे लोगों को मिला के कर रहा हूँ, क्योंकि मैक में भी 80-20 हो सकता है ज्यादा। यस सर। हाँ 80-20 का रेशियो हो सकता है, तो उनको कहिए कि भाई थोड़ा ट्राई करें, वो भी कहीं से करेंगे। एनीवे, हम एक असाइनमेंट आप लोगों को भेजेंगे, आप लोग कोशिश करिएगा, जो ग्राफ्स के हैं वो भेज दूंगा। अगर नहीं टाइम मिलेगा तो कोई बात नहीं, मंडे मिलके करेंगे। ग्राफ्स बनाने के लिए थोड़ा हम बात करेंगे फर्स्ट सेशन में, और उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे आ जाएंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर आज नहीं है, मंडे को होंगे। हाँ जी, आज नहीं है, मंडे को होंगे सर क्वेश्चन। नहीं, आज अभी पूछना है तो पूछिए। अगर मेरे 2 ऑप्शन है, अभी पूछिए, 2 दिन का टाइम है। अगर आपने पढ़ाई किया है, कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन है, तो मंडे को जो फर्स्ट हाफ में हम आपके क्वेश्चन का रिस्पांस दे सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अभी 2 दिन सर, अभी कल तो कुछ पढ़ा नहीं, ये 2 दिन पढ़ लूंगा तो फिर जरूर आएगा डाउट कुछ ना कुछ। हाँ, तो इसीलिए मैं कहा ना कि आप पूछ सकते हैं। देखिए, कभी भी जो सुबह वाला जो स्टार्ट करते हैं वहां रोक के पूछ सकते हैं कि सर हमको ये बता दीजिए।
हम बता देंगे। अगर मुझे भी नहीं आता होगा तो हम कहेंगे ठीक है, हम देख के हम आपको कल बता देंगे, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन तो जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन आप पूछेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे? अपनी तरफ से तो हम बहुत सारी चीजें आप लोगों को बोले, जो कि आउट ऑफ कोर्स भी था, ठीक है। हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि आप लोगों का 2 घंटे होता है, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनर्स हम आपको पूछ लेंगे, असाइनमेंट दे देंगे गूगल फॉर्म से, और जो एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, एक डिस्क्रिप्टिव और एक जो होगा न्यूमेरिकल। तो 70 मार्क्स है, तो 30 मार्क्स आपको न्यूमेरिकल होगा, 40 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल होंगे। थ्योरेटिकल में क्वेश्चन क्या होगा, आपने देखा, सोर्सेस ऑफ डाटा। सो इसमें कोई नंबर नहीं है, तो आप रेशो डरने की बात ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है, थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट होगा, एग्जाम के लिए कोई पढ़ने 40 मार्क का केवल थ्योरी होगा, आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ, अब लिखो, पास हो जाओ। लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको न्यूमेरिकल तो करना ही पड़ेगा। नहीं सर, मार्क्स से कुछ नहीं होता सर। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, मैं स्टार्टिंग में कहा कि स्टैटिस्टिक्स एक टूल है, स्किल है, वो उतना सीख लीजिए, वो आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन सीख जाओ इतना काफी है सर, पास तो आप कर ही दोगे। नहीं, लेकिन मेरे पेपर में 100 पाना बहुत मुश्किल है। 100 चाहिए ही नहीं सर, आप समझो, 100 नहीं चाहिए। अरे आपको नहीं चाहिए ना, बहुत सारे लोगों को चाहिए भाई। अच्छा, हाँ, ये भी ठीक है, हैं? ये भी ठीक है सर। हेलो, हमने फेंगे तो पास हो जाएंगे, 35 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो है और जो कि थोड़ा मॉड्यूल को पढ़ा है, पीपीटी को पढ़ के एग्जाम में भी पढ़ा है। कुछ लोग एग्जाम के सुबह एग्जाम में, शाम को पिक्चर देखते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं। मेरे तो मुझे याद है कि बार एक इस बच्चे ने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स आ गए थे, हमारा बर्थडे था, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, सुबह एग्जाम था, पढ़ाई नहीं की, फेल हो गए। तो कुछ लोग 30% ऐसे होते हैं कि जिन्होंने थोड़ा अपने एग्जाम से पहले रिवाइज कर लिया, वो पास हो गए। 80%, 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, ताकि जो थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, जो है थोड़ा ट्रिकी होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप मार्क्स पाएंगे। तो इसलिए जो इस पेपर में 92 तक, 93 तक जाते हैं, 100 नहीं जाते, बट इस पेपर में आप 100 ला सकते हैं, क्योंकि इवन अगर डिस्क्रिप्टिव भी है, आपने अगर लिख दिया, अगर 5 नंबर का है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, आपको 5 में 5 मिलेगा। तो इसमें नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अच्छे पाते हैं, मतलब 80% स्टूडेंट जो ऐसे हैं कि जो कि 16 से ऊपर तो ले ही जाते हैं, लेकिन बाकी जो 20% है वो स्ट्रगल करते हैं। वो स्ट्रगल इसलिए करते हैं ऋषभ की तरह, पहले अगर जूम कर लेते हैं कि अरे ये तो टफ है, ये हमको नहीं आएगा, पहले गिव अप मत करिए। माय रिक्वेस्ट, नॉट ओनली ऋषभ एंड अदर 5-10 स्टूडेंट, डोंट गिव अप, ट्राई इट। कोशिश करने के बाद अगर ना हो तो दूसरी बात है, अगर कोशिश करने के बाद अगर हो जाता है तो गो अहेड, ठीक है। और जो वीक स्टूडेंट रहेंगे वो अलग से भी आप क्लास ले सकते हैं, अलग से भी मेरे से बोलेंगे तो मैं उनके लिए अलग से जो भी आप की रिक्वायरमेंट है, हेल्प है, आई एम रेडी टू डू दैट। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्लैरिफिकेशन, मे बी 5 मिनट, देन वी कैन क्लोज। नो सर। है नहीं, आप क्यों बोल रहे हो ऋषभ, आप चुप रहो, दूसरों को थोड़ा बोलने दो। ठीक है सर। हैं, आपका हो गया तो आप अभी थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, लेट अदर थिंग एंड मानसी, रीमा एंड व्हाट, और लोग कोई नहीं है? यस सर। यस सर। अटेंडेंस ले लें आप लोग? यस सर। चलिए, गिव मी जस्ट 2 मिनट, अटेंडेंस ले लेते हैं। रोल नंबर 1, Present, sir. 2, Yes, sir. 3 एब्सेंट थे सुबह भी, 4 प्रेजेंट सर। 5
5. Alisa Anand. 6. Present, sir. 6. Present, sir. I'm present. क्या नाम क्या है सर? Colonel Amit Langar, sir. हाँ ठीक है सर. 7. Present, sir. Roll number 7. 8. Present, sir. 9. 9. सर अंगिका का मैसेज आया, वो लॉबी में वेट कर रही है, कोई इन नहीं कर रहा सर उसको. ठीक है आज कंसीडर कर ले तो उनको कहीं नहीं थोड़ा सर, मैं मदद- आ गई सर, मैं आ गई आई एम सो सॉरी क्या हो गया था? सर, वो नेटवर्क इशू था. चलिए वो तो होता रहता है लेकिन जस्ट हाँ जी सर, आई एम सो सॉरी. ओके नो इशू 10. Present, sir. 11. Present, sir. 12. Present, sir. 13. Sir, he is having some network issues. He was present in the morning. 14. Present, sir. 15. Present, sir. 16. Present, sir. 17. Present, sir. 18. 17 Present, sir, sir. 17 का present लगा ना? 18 present, sir. 19. Sir, excuse me, sir. हाँ यस. Sir, 17 का present लगा? हाँ लग गया. Okay, thank you, sir. सर 18 का 19. 19 एब्सेंट थे सुबह. 20. Present, sir. 20 present, sir. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24. Okay. 25. Present, sir. 26. Present, sir. 27 and 8 तो absent है, मतलब वो है ही नहीं. 29. Present, sir. 30. 30. 30 absent है. 31. Present, sir. 32. Present, sir. 33. Present, sir. 34. Present, sir. 35. 36. 37. 38. 39. Present, sir. Colonel. Present, sir. Yes. 40. Present, sir. 41. Present, sir. 42. Present, sir. 43. Present, sir. 44. Excuse me, sir. Yes. Sorry, बोलिए। sir. Sorry to interrupt, sir. I'm roll number 5. सर मेरी मीटिंग लीव हो गई थी, अभी दोबारा से ज्वाइन करा. हाँ ठीक है, तो थोड़ा बाद में बोलिएगा, एक बार साइकिल कंप्लीट हो जाए. Okay, ठीक है, sir. because I can't go back. So एक बार साइकिल कंप्लीट, then just you wait 2 minutes. 44. 45. 44 present. 45. Okay, 44 present. 45. Sir, 45 present. 46. Sir, 45 present, sir. हाँ okay, 46. Absent. 47. Present, sir. Sir, 47. 48. Present, sir. 48 present, sir. Okay. 49. Present, sir. 50. 50. 51. 52. Yes, sir. 52%, sir. 53. 53 present, sir. 54. Present, sir. 55 present, sir. 56. 57. Present, sir. 57.
प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। हाँ ठीक है 58, 59, Present, sir. 59 present. 60, 60, वो जो सुबह का केस था। रुचि शर्मा, हेलो। Yes, sir. 59. आप सुबह कुछ कह Sir, रहे थे ना? 59. 60 की कुछ हाँ बातें सर, कर- 60. सर 60. She was present in the morning, sir. अभी तो मुझे भी नहीं शो हो रही है वो. ठीक है, 60 हो गया। 61, प्रेजेंट सर। 61 प्रेजेंट। ओके 62, 63, 63 present, sir. ओके 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, Present, sir. 67, Present, sir. 68, Present, sir. 69, 69, Present, sir. 69 present, sir. 70, Present, sir. 71, 72, 73, 73, 74, 75, Sir, 74 present, sir. Shivani. 74 present. आप सुबह नहीं आए थे ना, एब्सेंट थे? Yes, sir. सर मैंने एप्लीकेशन दे दिया था सर कॉलेज में. कैसे देते हैं, ईमेल के थ्रू? Yes, सर. ईमेल किया था सर. तो आप मेरे को भी कॉपी कर दिया कीजिए। ठीक है श्योर सर. ओके सर. एवरीबडी हाँ। Yes, sir. 75, Present, sir. 76, Present, sir. 77. Present, sir. What is roll number? So 77. Okay. 78, Present, sir. 79, 80, 81, प्रेजेंट सर। 81 प्रेजेंट। 82, Present, 81 sir. प्रेजेंट सर। 82 present, sir. 81, 82 present. 83, 84, Present, sir. 84 no? Yes, sir. 84. 85, Present, sir. 86, 87, Present, sir. 88, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 88 no? यस सर 88। ठीक। 89, 89, 90, Present, sir. 90, Present, sir. 90. okay, 91, Present sir. 92, Present, sir. 93, Present, sir. 94, 95, 96, 96 present, sir. 97, 97 present, sir. 98, 98 present, sir. 99, Present, sir. 101, Present, sir. 102, प्रेजेंट सर। 3, Present, sir. 4, Present sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, 107, 108, Present, sir. 109 and 110, 111, 112. 112 present, sir. Amanpreet. ठीक है 111 Sir, 100, 111 present, sir. बोलिए ना। Present, sir. Present. हाँ ठीक है 113 Present, sir. who is there? Hello, who is 100?
is 13 or 14? Hello. Sir, 114 present. 114. What about 113? किसी ने आवाज दिया था तो मैं इसलिए 150. Yes, sir. उसका नेटवर्क इशू है. क्या नाम है उनका? हेलो, जिनका नेटवर्क इशू है उसका रोल नंबर क्या है? 116. Present, sir. 116. 117. Present, sir. 117. Thank you. 118, 19, 20. Sir, 120 present. ओके, ये 115 में कौन है? किसी है प्रेजेंट है या एब्सेंट है? ये सर उसका नेटवर्क इशू है. क्या नाम है उनका? सर पिपलाद अरोड़ा. ठीक है. एनीवन समवन रोल नंबर 5 बोले थे ना? Yes, sir. Roll number 5. ओके. The roll number 86 is also present. रोल नंबर? Number 13. Sir, roll number 18, sir. 18, 1, 8. Already there, 18. Sir, What? roll number 30. Sir, 86. 86. Sir, confirm करना है 24 roll number is present. रुके. Just wait. 86 तो कंप्लीट करें. 86 क्या नाम है? Sir, Subhashri Nayak. ठीक. हाँ, 86 हो गया. क्या कंफर्म करना है? 30. Sir, roll number 24. अरे दो नंबर एक साथ बोलेंगे तो प्रॉब्लम. 20. रोल नंबर 24. हाँ, प्रेजेंट है. Sir, roll number 30. 13 या 30? Sir, 30. Manisha. एब्सेंट है. Yes, sir. ठीक है. इट्स ओवर. Yes, sir. So these 2 days are basically introductory. बहुत ज़्यादा लोड नहीं था. So my request is just read 4 pages and it will take half an hour. Just एक नॉवेल जैसा पढ़ते जाइए because ये थ्योरी है and this based on your common sense पे आप पढ़ लीजिए. If you have any doubt, clarification mind में, let us discuss Monday morning. No issue. Monday will focus on descriptive statistics, mean, median, mode, standard deviation, and then what else? Graphs. And I will send you one or two mail, maybe by evening, maybe by 7 or 8 after. Like for example, one video and this indicator PPT. So 2-3 material I will send you. Okay. So bye everybody for Monday. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Hello.
हेलो, हाँ तरुण, अरे एक दो चीज पूछना था यार। ये मुझे अटेंडेंस शीट मिला है, ये 27, 28 ये क्या छोड़ दिया क्या? क्योंकि अब हैं, नहीं डेट नहीं पूछा मुझे, ये रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर है। वो दोनों दिन नहीं आए थे, तो मुझे लग रहा है कोई बता रहे थे शायद कैंपस छोड़ दिया या क्या है। तो वो थोड़ा कंफर्म कर देंगे। 27, 28 एक रोल नंबर है। अब अभी नहीं तो मंडे के कर दीजिएगा। एक तो 22 रोल नंबर हमको मिला है ना, 27, 28 में डाउट है। और कितने लोग गए हैं, कितने बच्चे गए? 2-3 ही गए होंगे ना।